باطل نے جب جب بدلے گئے تگور، آیا گئے تب تب میری زباں پر. باطل نے جب جب بدلے گئے تگور، آیا گئے تب تب میری زباں پر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. پہلے بولو مردہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک. بنا دو مردہ نبی کو، مردہ بنا دو نبی کو. زندہ مانتے. ارے اللہ کے رسول دنیا کے لیے مردہ دنیا میں مر گئے نا. دنیا میں مر گئے؟ ہاں دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے رسول ابھی بھی مردہ کہتے ہو؟ دنیا کے لیے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی ان کو بھی مرنا ہے اور آپ کی موت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان وہاں پر فٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہیں. کہاں پر؟ تو کیا ارے اللہ بول رہا ہے نبی آپ کو بھی مرنا ہے، ان کو ہی موت آئے گی. جی یہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں نہیں زندہ اپنا دیے رسول اللہ کو. آپ بول رہے ہیں زندہ اپنا دیے. موت سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور یہ تہمت تو کتنا اچھا موت سے انکار نہیں ہے، تو موت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آن کے لیے موت آتی ہے، کتنا سیکنڈ کے لیے؟ جب تک اللہ رب العزت چاہا. ارے بے وقوف زمانہ، جب تک اللہ رب تو اللہ رب العزت تو یہ بھی چاہ سکتا تھا کہ دنیا میں ہی نبی کو رکھتا. آپ روک لیتے کیا؟ وہ تو اللہ کی مرضی ہے نا. ارے تو اللہ کی مرضی پر آپ، ارے اللہ کی مرضی پر آپ مردے کو سنا رہے ہو نا بھائی. اللہ کی مرضی وہاں چل رہی ہے، مردے کو سنا دنیا میں رہے ہو آپ. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا بات کر رہے ہو یار آپ؟ تو پھر 33 گھنٹہ زندہ تھے کہ مردے تھے؟ 33 گھنٹہ آپ حساب کر کے رکھے ہو اس کے. ارے سارے حدیث مبارکہ ہے 32 سے 33 گھنٹہ. اللہ کے بولتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کا جسم آتا ہے 32 سے 33 گھنٹہ باہر تھا دفن ہونے سے پہلے. 33 گھنٹہ 32 سے ارے مفسرین کرام محدثین نے ارے حدیث ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ اس پر معلوم ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات بتائیے تو. اچھا ایک سیکنڈ اختر بھائی، ایک سیکنڈ آرام سے آپ یہ بتائیں. ارے ایک سیکنڈ اختر بھائی، ایک سیکنڈ آرام سے میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلی بات اٹھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کیے تو صحابہ کیا انتقال سے پہلے دفن کر دیے؟ آپ حدیث پڑھیں جناب. نہیں انتقال سے. ارے تو حدیث کیا مطلب؟ آپ کو بتاتا رہو کیا صحابہ جو ہے باڈی کو لے جا کے دفن کر دیے ترنت لے جا کر کے؟ اللہ رسول زندہ حالت میں ترنت جا کر کے نہیں. میں تو صاف کہہ رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو روح قبض کیا اللہ رب العزت جتنا چاہا اتنا دیر اس کو جتنا دیر رکھا اتنا دیر مردہ بنا کے رکھ دیا. جی کلو مردہ بنا کے رکھ دیا. اللہ پوری روح کو قبض کیا تو مردہ تھے کہ زندہ؟ ابھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ مانتے ہو یا زندہ مانتے ہو؟ ارے دنیا کے لیے مردہ ہے نا. دنیا کے لیے مردہ ہے کہہ کر کے. ہاں تو حدیث کا آپ انکار کرو گے؟ کیا انکار کرو گے؟ حدیث پڑھیے. حدیث تو میں پڑھ دے رہا ہوں لیکن آپ کا عقیدہ حدیث کے بالکل خلاف ہے جناب. ارے حدیث پڑھیے نا بھائی پہلے آپ. جناب ہاں پڑھیے، حدیث پڑھیے. دیکھیے گا آپ کو میں آپ کے حساب عقل فہم سے میں بتا دے رہا ہوں. ہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل پر 9 قسمیں کھانا اس سے زیادہ پسند ہے کہ اس کے قتل نہ ہونے پر 1 قسم کھاؤں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور شہید بھی بنایا. جس شہید بنائے یہ حدیث مسند احمد بن حنبل، مسند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او بے وقوف زمانہ، او بے وقوف زمانہ، او بے وقوف زمانہ. سنو غور سے حدیث سن لو جناب. کیوں آپ بک بک کر رہے ہو؟ شہید بنایا تو میں پوچھ رہا ہوں کہ جسم مبارک کتنا دیر تک قبر کے باہر تھا؟ شہید بنائے مانتے ہیں یہ؟ ارے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارے اللہ کے رسول اللہ، ارے پہلے یہ تو سنو او بے وقوف زمانہ، پہلے یہ تو سنو بے وقوف زمانہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب باڈی باہر تھا اختر نظامی بھائی، یہ شہید ہو گئے تو باڈی باہر تھا کہ نہیں تھا؟ شہید کا درجہ آیا نا. شہید کیسے بنتا ہے آدمی؟ شہید کا درجہ مانتے ہیں نا؟ ارے شہید پہلے شہید بنتا کیسے آدمی یہ بتائیے. آپ یہ حدیث مانتے ہو یا نہیں؟ پہلے شہید کیسے بنتا پہلے یہ تو بتائیے. شہید جو اللہ کے راستے میں یا کسی اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتے ہیں، سمجھے، اور اس کے روح قبض ہو جاتے ہیں،
अरे वैसे नहीं और बोलिए, सुनिए सुनिए, नहीं आता है तो सुनिए। जिस पर जो कत्ल किए अल्लाह के जाते, रास्ते में कत्ल किए जाए, मारे जाए, पूरे डिटेल्स बता रहा हूँ, तो जो अल्लाह आदमी के रास्ते मरकर में कत्ल हो मरकर जाए, शहीद होता है। सुनिए अल्लाह के आदमी, रास्ते में अरे जान सुने फानी ना, कर दे वो शहीद हाँ होता है। जान फानी, एक बात बताइए, आदमी जैसे जंग में गया, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि रुकिए वसल्लम को रुकिए आप रुकिए शहीद मानते हो या रुकिए नहीं मानते हो? रुकिए रुकिए, पहले रुकिए तो भाई, शहीद पर आ रहे ना, क्यों बका रहे इतनी जल्दी। एक आदमी जंग में गया, बोलिए हाँ, वो लड़ा, शहीद हो गया, मर गया, जी मर गया। और मान लिया आप भी जंग में गए, हम भी जंग में गए, है ना, हम लोग दोनों इस्लामी जंग में गए, आप गए, आप लड़कर शहीद हो गए, मर गए, और हम जिंदा होकर के आ गए, या आप जिंदा होकर के आ गए, हम मर गए, हम शहीद हो गए, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए, तो आपको क्या बोला जाएगा? आप जिंदा बच करके, लड़ करके, दुश्मनों को मार करके आप आए, तो आपको क्या बोला जाएगा? आप जिंदा वो होकर शहीद बोला है, जाएगा। शहीद को कुरान बोलता है वला तक़ूलू लिमन आप जिंदा होकर के आपको और आप शहीद हो गए, माशाअल्लाह। जिंदा होकर के वापस आए तो वो गाजी कहलाता है, गाजी कहलाता है। तो अब ये और बताइए, जो अरे अल्लाह के रास्ते सुने, में जो शहीद होते हैं वो जिंदा है, कुरान कह रहा है, जिसका आप इनकार कर रहे हो जनाब। तौबा कीजिए जनाब, हंसिए नहीं, तौबा कीजिए इस पे। क्या आपने कुरान और हदीस का इनकार कर रहे हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस कह रहा है शहीद है, और कुरान कह रहा है शहीद जिंदा होते हैं, रिस्क दिए जाते हैं। तो आप कुरान की आयत का इनकार है, और आयत का इनकार करने वाला काफिर मुश्रिक होता है। आप ही बोले ना कि वो जिंदा बच करके आएगा तो गाजी कहलाएगा। जी जी, इनकार कर रहे हो, गाजी कहलाता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहीद होने की दलील कुरान आयत हदीसों से मिल रहे हैं, और कुरान कह रहा है कि उसे मुर्दा मत कहो, और आप मुर्दा कह रहे हैं, मतलब कि कुरान को इनकार कर रहे हो आप। सुनिए ना, सुनिए अख्तर भाई, कुरान को इनकार करने वाले हुए या नहीं बताइए? अख्तर ने जानी भाई, सुनिए ना, देखिए एक आदमी गया और मर गया। अपनी अक्ल से बात मत कीजिए, हवाला से कुरान और हदीस की बात कीजिए। अरे आपने बोला ना कि गाजी है। अरे जनाब अक्ल से बात मत करो, हदीस का हवाला दो, कुरान की अहले हदीस कहलाते हो ना। एक आदमी, सुने ना, एक आदमी, आप ही ने बोला ना कि वो जिंदा गाजी कहलाएगा, फिर आप बोल रहे हैं जिंदा शहीद कहलाएगा। जिंदा शहीद कहलाएगा? कौन बोला है जिंदा शहीद कहलाएगा? तो जो शहीद हो जाते हैं, लानत हो, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं उससे शहीद कहा जाता है, जिसके बारे में कुरान कह रहा है कि उसे मुर्दा मत कहो, आप मुर्दा कह रहे हो। अरे मारे लफ्ज क्यों हटा रहे, कत्ल किए जा रहे लफ्ज क्यों हटा रहे? आप पहले कत्ल किए लफ्ज लाओ ना, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए, कत्ल किए जाए, मारे जाए, फर्क नहीं आता आपको? समझ नहीं आ रही है उर्दू? जो मारे जाए वो शहीद है, ठीक है जी, जो मारे जाए वो शहीद है, और वो जिंदा है, वो जिंदा है। मार दिया भी गया हो और जिंदा भी हो, आप ही ने बोल रहे सही। अकले ना भाषा का मुद्दे हवा, कैसे बेवकूफ हुसैन भाई, जिंदा नहीं है हुसैन। चलिए माशाअल्लाह, मान लिया अख्तर निजामी भाई ने मान लिया कि शहीद जिंदा नहीं। हुसैन साहब जो गाजी होते हैं ना, जिंदा होते हैं, उसको गाजी का लक़ब मिलता है इस्लाम में। तो शहीद और जो शहीद हो जाते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाए, उसको शहीद, शहादत का दर्जा मिलता है। और शहीद जो होते हैं वो अल्लाह के रास्ते में, तो उसको कुरान कह रहा है कि जिंदा है, तुम मत कहो मुर्दा, आप मुर्दा कह रहे हो, मतलब कि कुरान के दुश्मन हो। अरे रुके ना भाई, शहीद तौबा क्यों नहीं करते जनाब? रुके ना भाई, शहीद जिंदा है और गाजी भी जिंदा है, दोनों जिंदा है ना। गाजी भी जिंदा है और शहीद भी जिंदा है। अपने अक्ल से बात मत करो, हवाला अरे अभी ना बोल रहे यार, अरे कौन गाजी कहलाता है जनाब जो जंग में जा करके वापस जो मुर्दा आता है, जिंदा आता है, जो बहायात जिंदा बोलो ना, जिंदा होता है। अरे जिंदा बोलो ना, जिंदा बोलने में दिया जाता है। अरे जिंदा बोलने में तुम्हारी मौत क्यों हो रही है? अख्तर निजामी भाई जिंदा है ना वो। चलिए गाजी जिंदा हो गया, गाजी जिंदा है, और शहीद इसके मद्दे मुकाबिल जो शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, वो भी जिंदा है अल्लाह के रास्ते में, वो जिंदा है। जिंदा से इनकार करते हो? मतलब दोनों जिंदा है जी, जो शहीद, वो शहीद, ये जिंदा जो आदमी जिस्म के साथ वापस आया है, उससे बढ़कर के जिंदा है वो। अरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब दोनों जिंदा हो गए ना। नहीं, इससे इसकी जिंदगी से बढ़कर के जिंदगी उसकी। अरे अच्छा, मतलब बढ़ करके गाजी का, गाजी भी जिंदा आया और शहीद गाजी से बढ़ करके उसकी जिंदगी है। अरे बढ़ करके बाद में आएंगे ना, पहले दोनों जिंदा हो गए ना जी। तो ये भी जिंदा, वो तो अफजल जिंदा, वो अफजल। अरे अल्लाह ताला तो बोल रहा है कि जो मारे जाए जी, आप बोल रहे कि नहीं जिंदा हो गया, वो मारे जाए, उसको मुर्दा ना कहो, कुरान कह रहा है। मुर्दा ना कहो, पर बाद में आएंगे ना, पहले मारे जाए से क्यों भाग रहे हो आप?
मारे जैसे जो अल्लाह के रास्ते में मार दिए जाए, कुरान में है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाए उसे मुर्दा मत कहो। तुम मुर्दा कर रहे हो, जिंदा होकर कत्ल होता है कि मरकर कत्ल होता है? तो कुरान के खिलाफ हो, अपने अक्ल से अकीदा रखते हो। आदमी जिंदा होकर कत्ल होगा कि मरकर कत्ल होगा? जनाब मन अपनी अक्ल का अकीदा मत चलाओ, कुरान के आगे घुटना टेक दो और तौबा करो। भाई कुरान एक जगह और कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में मार दिए जाए उसे मुर्दा मत कहो, गुमान भी मत करो। कह रहा है कुरान का रास्ते मत करो, अपने गुमान भी कर रहे हो और बोल भी रहे हो मुर्दा। अरे तो समझ में आती है। अरे तो शहीद तो हम लोग जिंदा, कैसे मुश्रिक हो तुम लोग यार, कुरान का इनकार कर देते हो अपने धर्म के चक्कर में। अरे शहीद को जिंदा दफना दिया चलिए ना। तौबा कीजिए, कुरान की आयत का मैं हवाला दे दिया। मतलब सहाबा शहीद को इससे तौबा कीजिए कि हम शहीद जो हुए हैं। हुसैन साहब, गैर मुकल्लिद साहब, आप तौबा कीजिए, कुरान की आयत के आगे घुटना टेक दो। जल्दी से तौबा कीजिए। तौबा तो पूरी तौबा कीजिए जल्दी, मेरे सामने बोले हो अभी मेरे भाई, तौबा कीजिए। वो बरेलवियत है। आप जनाब अपने अक्ल से तुम लोग अकीदा बनाए हो ना, अपनी अक्ल से गढ़ कर अकीदा बनाए हो, कुरान की आयत का इनकार कर दिया। लाहौल वाला कौन सी आयत? अरे कुरान की आयत तो बोल रही जो अल्लाह के रास्ते में मारे गए, तुम बोल रहे हो जिंदा है। अरे मैं कह रहा हूँ जिंदा, कुरान कह रहा है जिंदा है। कहाँ जिंदा है? कहाँ जिंदा? पूरी आयत पढ़ो, पूरी आयत पढ़ो। पूरी आयत पढ़ो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में मार दिए जाए उसे मुर्दा मत कहो। कुरान कह रहा है मुर्दा मत कहो, तुम कह रहे हो मुर्दा कहो। कुरान कह रहा है वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाए उसे मुर्दा गुमान भी मत करो, सोचो भी नहीं। कह रहा है तुम मुर्दा सोच भी रहे हो, बोल भी रहे हो। मतलब कि कुरान की आयत का सरीह इनकार कर रहे हो और सरीह इनकार करके तुम बदतरीन काफिर हो गए। मतलब बताओ, वला किल्ला तशउरून, वला किल्ला तशउरून। हाँ, वला किल्ला तशउरून तुम्हारी समझ से बाहर है। कैसे जिंदा रखता है अल्लाह रब्बुल इज्जत? अल्लाह ताला जिंदा कैसे रखता है? तुम कैसे मुर्दा कहे उसे जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदा रखा है? एक सेकंड रुको ना यार, रुको ना। नहीं, आप पहले तौबा कर लें इस बात पर। अरे वला किल्ला तशउरून नहीं, पहले नंबर तौबा करें जनाब। कुरान की आयत का मजाक उड़ाया है तुमने। कौन सी बात पर? कौन सी बात पर? कि शहीद को तूने मुर्दा कहा। तो बोलने तो दो भाई, बोलने दो। पहले तौबा कर लीजिए इसमें। तौबा क्या? शहीद दुनिया के लिए तो मुर्दा ही है, दुनिया के लिए मुर्दा है। अरे दुनिया के भाड़ में जा, कुरान के तुम गले से लगाओ, कुरान को दावत दो, सीने से लगाओ, अल्लाह पर यकीन करो। क्यों अल्लाह पर यकीन नहीं करते जनाब? सुनो, अल्लाह पर यकीन क्यों नहीं करते? अरे कुरान बोल रहा है कि कत्ल कर दिए गए। कत्ल कर दिए गए ना? हाँ, तो दुनिया के लिए कत्ल हुए कि आखिरत के लिए कत्ल हुए? दुनिया के लिए अकल। ये जो अकल की घोड़ा दौड़ा रहे हो, कौन सी किताब के हवाले से बोल रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह। क्या कत्ल कर देने में दुनिया के लिए कत्ल नहीं है? दुनिया के लिए अल्लाह कितने बड़े गुमराह, पूरे कुरान की धज्जियां उड़ा रहे हो और कुरान के सामने अकल दौड़ा रहे हो। अकल से अकीदा बनाते हो तुम लोग यार, कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए। जनाब हुसैन गैर मुकल्लिद साहब, हुसैन गैर मुकल्लिद साहब, आपसे मैं इल्तिमास करूंगा कि आप तौबा कर लो। वल्लाह बता रहा हूँ, कुरान के आगे अपनी अकल को मत दौड़ाओ। अरे अल्लाह ताला रे, अकल तो आप दौड़ा रहे हो ना। अरे अकल के बंदे, अकल से तुम अकीदा बनाए हो, शर्म आती है मुझे। अरे अकल से अकीदा तुम बना, अल्लाह कह रहा है कि सुनो हदीस सुनो, मैं सुनाता हूँ। सुनो हदीस सुनो, अल मुस्तदरक अल सहीहैन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 57 हदीस नंबर 4321। बकबक मत करो, हदीस सुन लो। अरे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, जिस बीमारी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, उसमें आप फरमाते थे मुझे इस खाने के जहर जो मैंने खैबर में खाया था बराबर महसूस होता रहा, यहां तक कि अब वो वक्त करीब आ लिया है इस जहर से मेरी शहरक कट जाए। और उससे जहर से उनकी इस दारिफ आने में क्यों उससे असर हुआ, यह हदीस से पता चला। इससे भी शहीद का दर्जा आपको दिया गया। और एक ये दलाइल हदीस में ये मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप लोग मुर्दा कहते हैं यार, और हदीस के और कुरान का भी खिलाफ कर कैसे चले जाते हो, कैसे हिम्मत करते हो तुम लोग यार? अरे सुनो तो यार, पहले सुनो तो भाई। तुम मुर्दा बक रहे हो, तुम्हारे इस्माइल देहलवी यही कहा है, मर के मिट्टी में मिल गया, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसे धर्म को लात मार के मुसलमान की तरफ आओ यार। पुजारी भाई पहले सुनो तो,
कब्र की पुजारी कौन करता है? कब्र की पूजा पूरी बरेलवियत कब्र की पूजा करती है। लाहौल वाला कौन किताब में लिखी हुई जनाब? अरे मैं बता रहा हूँ, खटिया खड़िया बिस्तर गोल हो जाएगा। अभी सुनो ना, पहले सुनो, धोती खराब कर लोगे अभी। बताओ कौन सी किताब में लिखे हो? लिखी पढ़े मुशरिकीन मक्का से बदतर है। तुम लोग तो हिंदू से बदतर कौम है, मैं साबित करता हूँ ना। सुनो ना आगे सुनो। अरे सही जनाब, हदीस के खिलाफ मत जाओ, कुरान की वल्ला बता रहा हूं, कुरान के खिलाफ जा करके अपने अकीदा को बर्बाद मत करो, सीधा तौबा करो। पहले नंबर कुरान की आयत का किए जाए, कुरान के तर्जमा में जो अपने अकल से समझ रहे हो कुरान की आयत को, तो उससे तौबा करो। कुरान की आयत को गले से लगाओ। नहीं, कत्ल करना क्या है? कुरान की आयत को मानोगे या नहीं? कत्ल होना क्या है पहले ये बताओ मेरे को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा मानते हो ना? अरे पहले कत्ल होना क्या है पहले ये तो बताओ। अस्तगफिरुल्लाह, कत्ल छोड़ के भाग गए। कुरान की आयत बोल रहा है कत्ल, भाग गए कत्ल छोड़ करके। माशाअल्लाह यार, कैसा भागे यार। जब अल्लाह जनाब अल्लाह के जो कलाम है ना, उस पे अपने अकल के घोड़े नहीं दौड़ाते, समझे? अरे भाई अल्लाह ताला कह रहा है कि जो अल्लाह के तो तुम अकल के घोड़े दौड़ा रहे हो कुरान की आयत में। कत्ल छोड़ के क्यों भाग रहे हो तुम? कौन सा तफसीर के हवाले से पढ़ रहे हो? बताओ पहले कत्ल क्या है ये तो कहाँ कत्ल क्या है कि इससे क्या तुम समझ सकते हो उसको? अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे जिंदगी देता है, कैसे जिंदा रखा है। तुमने मुर्दा कहा है कुरान की आयतों के मजाक बनाते हो। तुम मुर्दे को सुना सकते हो? मुर्दा को सुना सकते हो? सुनने में बात करोगे अल्हम्दुलिल्लाह, वो सुनने पर बात करोगे तो मुर्दे सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं। कौन मुर्दे? कौन मुर्दे? मुर्दे कौन मुर्दे नहीं सुनते? मुर्दे कौन मुर्दे बताओ तो पहले। कौन मुर्दे सुनते हैं? कौन सा मुर्दे सुनते हैं? तमाम ही मुर्दे सुनते हैं, समझे? तमाम मुर्दे वली सब मुर्दा हो। माशाअल्लाह, वली घोड़ा कहाँ, क्यास कहाँ की लाठी, कहाँ का घोड़ा, बानमती में कुंभा जोड़ा के हिसाब लगा रहे। हदीस का मजाक मत उड़ाना है ना। सहीहुल बुखारी किताबुल जनाइज में देखो, खोल बाबे अज़ाबिल कब्र जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 462 हदीस नंबर 1370। कान खोल कर सुन लो, हदीस नंबर 1370। हदीस नंबर कितना? 1370। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मख्तूलीन काफिरों से पुकार कर फरमाया, बोलो मेरे तमाम फरमान सच्चे हैं या नहीं? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अर्ज किया कि बेजान मुर्दों से आप कलाम क्यों फरमाते हैं? तो फरमाया वो तुमसे ज्यादा सुनते हैं। का करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुमसे ज्यादा सुनते हैं, यानी ज्यादा समाअत मुर्दों की होती है। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तुम कह रहे हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहते हो, वहां पर यही अल्फाज है। जी बिल्कुल यही अल्फाज है। आपके 360 एक में है ना, 2 घंटा जो छापा है उसमें पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और तुम कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा समझते हो यार? अरे यार, तो मुशरिकीन मक्का मुर्दा लोग हिंदू से बदतर कौम है। सुनो मैं हदीस सुनाता हूं, सुनो इब्न माजा कहता है कि ऐ नबी आप मुर्दे को नहीं सुना सकते। सुनो वो आयत समझने से भी तासीर हो, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा उसके तफसील। वो आयत किसके लिए था? वो हदीस सुन लो, वो आयत किसके लिए था? ये हदीस सुन लो, मैं बता दे रहा हूं। अरे रुको पहले, अरे रुको ना कुरान को तुम लोग मानते हो यार, ना हदीस को मानते हो, तो फिर किसको मानते हो यार? नहीं, ऐ नबी आप मुर्दे को नहीं सुना सकते। ये आयत किसके लिए थी? ये आयत किसके लिए है? किसके लिए? अस्तगफिरुल्लाह। पहले हदीस सुन लो, उसके बाद वो आयत का जवाब दे रहा हूं। सुनो भागो तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहे हो ना? नहीं, पहले ये बताओ कि ऐ नबी आप मुर्दे को नहीं सुना सकते। तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए ना? मर गए, फिर मर गए कहता नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मर गए दुनिया के ऐ नबी, उनको ही पहले ये बताओ। हदीस कौन? इब्न माजा शरीफ जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 118 आदमी तुम्हारी हदीस नंबर 1637 हदीस का इनकार करने वाले कुरान का भी इनकार करता है, हदीस का भी इनकार करता है। आपने भी इब्न तैमिया इब्न अब्दुल वहाब का अकीदा जो हिंदू से बदतर था। हदीस सुनो पहले, सुनन इब्न माजा शरीफ, सुनन इब्न माजा शरीफ हदीस नंबर 1637।
हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह कहता है कि नबी आप मुर्दे को नहीं सुना सकते। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, पहले हदीस सुन लो, पहले हदीस सुन लो जनाब मन। हदीस का कुरान का दोनों का दुश्मन हो गया। मुर्दा कौन है? देखो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं बाद में आना, पहले है नबी आप मुर्दे नहीं सुना सकते, आए नबी आप मुर्दे को नहीं सुना सकते। कौन मुर्दे? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या जिया करते हो तुम लोग, मरते हो तो तुम लोगों के मरघट में कोई नहीं सुनेगा, लेकिन मोमिन जिंदा होता है, जिंदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली जिंदा होते हैं। सुनो, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी जिंदा होता है, उसे रिज़्क दिया जाता है, और तुम खबीस कह रहे हो कि मुर्दा होता है। और आगे तो इरशाद फरमाते हैं अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तुम हदीस का भी इनकार करते हो, खबीस अभी भी मुर्दा कह रहे हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ला हौल वला कुव्वत, कैसा धर्म में हो यार, तौबा करके मुसलमान बनो यार।